ملکی ترقی میں خلل نہ ڈالا جاتا تو پاکستان آج G20 میں شامل ہوتا۔ پاکستان کو ذاتی مفادات کے لیے نقصان پہنچایا گیا۔ منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کر گھر بھیج دیا گیا۔ نواز شریف کا لندن میں کارکنوں سے خطاب، کہا پاکستان کی ترقی کا پہیہ اب دوبارہ چل پڑا ہے۔ مخالفین اسی طرح نعرے لگاتے رہیں گے اور ہم ملک کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ایون فیلڈ کے باہر نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں نعرے بازی اور دھکم پے۔ اور بلوچستان کے ضلع کیچ میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گرد سرغنہ ثنا عرف بارو بھی ہلاک، دہشت گردوں میں شامل۔ ملزم خودکش بمبار تیار کرنے اور دہشت گرد حملوں میں مطلوب تھا۔ وزیر اعظم کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ٹرمپ کی ملاقات، اقتدار کی منتقلی سمیت دیگر امور پر بات چیت۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی فائنل کال۔ علیمہ خانم کہتی ہیں 26ویں ترمیم کر کے عوام کے حقوق چھین لیے گئے۔ آپ کا مستقبل تاریک ہے، ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں احتجاج کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے واپسی نہیں ہوگی۔ عدلیہ کی بحالی، رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی اور چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بیرسٹر سیف نے کہا احتجاج اتنا شدید ہوگا کہ مریم نواز بھی پاکستان واپس نہ آنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ احتجاج کی نگرانی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود کریں گے۔ فتنے کو صرف احتجاج کے خواب آ رہے ہیں، احتجاج کی آڑ میں شرپسندی پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ قانون توڑنے اور خوف و ہراس پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصبہ بخاری نے خبردار کر دیا، کہتی ہیں پنجاب کی ترقی فتنہ پارٹی سے ہضم نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی کی سیاسی پیدائش احتجاج، دھرنے اور جلسوں کی شرط پر ہوئی۔ امپائر کی انگلی، سازشی کردار اور سہولت کاری بانی پی ٹی آئی کی سیاست کا قبلہ رہا ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کارکنان کو سر پر کفن باندھ کر نکلنے کا حکم دینے والے خدا کا خوف کریں، ایک شخص کی رہائی کی خاطر اپنے کارکنوں کی زندگیوں کو داؤ پر نہ لگائیں۔ لندن میں وزیر دفاع خواجہ آصف کو چھری مارنے کی مبینہ دھمکی، ویڈیو سامنے آ گئی۔ نامعلوم شخص نے پہلے ٹرین میں خواجہ آصف کی ویڈیو بنائی، جب وزیر دفاع اترنے لگے تو چھری سے مارنے کی دھمکی اور گالیاں بھی دیں۔ واقعہ چند روز پہلے ہوا، قریبی ذرائع کی تصدیق۔ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ پر نہیں پورے پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد کثرت رائے سے منظور، ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہفتے بھر سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کی کال دی جا رہی تھی، برطانیہ سے بات کر کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رولنگ دی کہ وفاقی حکومت قرارداد کی کاپی برطانیہ کی ڈپلومیٹک پولیس کو بھی بھیجے۔ پنجاب میں اسموگ کا روگ، انتظامیہ ایکشن میں آ گئی۔ اسموگ SOPs کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں شروع، متعدد ریسٹورانٹ سیل کر دیے گئے۔ لاہور آج بھی دلی کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے آلودہ شہر رہا۔ لاہور ایئر کوالٹی انڈیکس 432 کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ محکمہ ماحولیات نے اسموگ پر نظر رکھنے کے لیے سیٹلائٹ سے مدد حاصل کر لی۔ راولپنڈی، ملتان، پشاور، اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہر بھی بدترین فضائی آلودگی کا شکار۔ لاہور میں اسموگ کے اثرات کم کرنے کے لیے درختوں کی دھلائی، کیمیائی مادہ جمنے سے درختوں کی آکسیجن پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ تاندلیا والا میں دھند کے باعث حادثات میں بہن بھائی سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ لیاقت پور میں دھند کے باعث مسافر کوچ اور آئل ٹینکر میں تصادم، کوچ ڈرائیور جاں بحق۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں باران رحمت کی پیش گوئی۔ دی، سوات، ایبٹ آباد، مری، گلیات، کشمیر GB میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ بارشوں کے نئے سلسلے سے فضائی آلودگی میں کمی اور ہوا کا معیار بہتر ہونے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، KP بالائی پنجاب میں اسموگ میں کمی کا امکان ہے۔
बारिशों के बाद पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने, नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की पेशगोई। मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का पता है, हल भी जानते हैं, वसाइल फराहम करें। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए आलमी बरादरी से मदद मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब में कहा, दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करना होगी। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दाम ना किए तो आइंदा नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। फंडिंग के वादों पर अमल करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। बाकू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। मिनी बजट नहीं आएगा, पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। IMF ने हुकूमती मौक़िफ़ से इत्तफाक कर लिया। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। IMF का टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार। ज़राए FBR का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 10.3% हो गई। IMF मुतमईन, ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू हो जाएगी। IMF के साथ ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के। 4 लाख नए ताजरों ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। PIA गैर मुल्की हुकूमत को फरोख्त करने की कोशिश। PIA को कतर या अबूधाबी को फरोख्त किया जाएगा। कतर या अबूधाबी से 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब की गई हैं। बेशतर शराइत व ज़वाबित पहले से तय हैं। गैर मुल्की हुकूमत को PIA के कितने हिस्से फरोख्त किए जाएं, इसका फैसला अभी नहीं हो सका। निजकारी कमीशन ने PIA के लिए ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की 10 अरब की बोली मुस्तरद कर दी। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का कहना है प्राइवेटाइजेशन के उमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की कल और जुमे के लिए कॉज लिस्ट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच कल 18 मुकदमात की समाअत करेगा। PDM हुकूमत में होने वाली कानून साजी कालअदम करार देने, मुल्क का लूटा गया पैसा दीगर मुल्कों से वापस लाने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर, बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली, सरकारी अफसरान की गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरखास्त की समाअत भी कल होगी। दफातर में खवातीन को हिरासा करने से मुताल्लिक मुकदमात भी कल समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज भी मुलतवी। फैसल चौधरी के मुआविन वकील ने इस्तदा की, हाई कोर्ट का हुक्म है पहले बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। जज ने कहा, अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई हुक्मनामा ट्रायल कोर्ट को नहीं मिला। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिमान का 342 का बयान रिकॉर्ड करने की इस्तदा की और कहा, बयान रिकॉर्ड करने के लिए 3 मौके दिए जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत से नहीं रोका। आखिरी गवाह पर जिरह के लिए अदालत 37 मौके फराहम कर चुकी है। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार, PCB पीछे हटने को नहीं तैयार। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल न मानने के फैसले पर डट गया। भारत की हरधर्मी के सबब शेड्यूल में ताखीर, ICC भी दबाव में। शेड्यूल का ऐलान हर सूरत 90 दिन पहले करना होगा। पाकिस्तान और भारत के बगैर टूर्नामेंट का इनेकाद भी मुश्किल। भारत की जिद से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भारी माली नुकसान हो सकता है। FBR ने तमाम टैक्सों की अदायगियों का नया ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करा दिया। FBR का कहना है टैक्सों की अदायगी का नया सिस्टम पोर्टल के अंदर दस्तयाब है। इसमें विदहोल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगी यकजा। हम निज़ाम में शफाफियत लेकर आए, 1 माह में टैक्स की वसूली 22 करोड़ रुपए हो गई। अब मुझे कोई कहे सड़क बनानी है तो मेरे पास पैसे हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि टैक्स का पैसा सही और शफाफ तरीके से आवाम की सहूलत पर खर्च करूँ।
हैदराबाद में खुला मैनहोल, एक और जिंदगी निकल गया। लतीफाबाद में 3 साल का सुफियान खेल के दौरान गटर में गिरकर जान बहाक। घर वाले सुफियान को लापता समझकर ढूंढते रहे। अहले खाना ने बच्चे की हलाकत का जिम्मेदार यूसी चेयरमैन को करार दिया। इलाका मकीन कहते हैं सियासी चपखलिश छोड़ें, गटर के ढक्कन लगाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबे पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। कहा आवाम को सफरी सहूलतों की फरहामी हुकूमत सिंध का आज़म है। मंसूबे की बरवक्त तकमील से लाखों लोगों को रिलीफ मिलेगा। सीनियर सूबाई वजीर की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मंशियात के इस्तेमाल से इंसान जहनी तौर पर कमजोर हो जाता है, लोगों की कैफियत ज़ॉम्बीज़ की तरह हो जाती है। ANF भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। मराकश फिजाइया की सरबराह की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। पाक फिजाइया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने मौजूद मेहमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एयर चीफ ने अस्करी शराकत दारी को मुश्तरका तरबियत को मजीद फरोग देने के अज़्म का इजहार किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी का दौरा। स्विट्जरलैंड और यूरोपीय यूनियन के वज़रा से मुलाकातें। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी ने कहा इंसानी स्मगलिंग कसीरुल जहती चैलेंज बन चुका। बैनुल अक़वामी माफियाज के गठजोड़ से कोई मुल्क अकेले नहीं निमट सकता। हमें मुश्तरका पॉलिसी इख्तियार करना होगी। फितनाल खवारिज के सरबराह नूर वली महसूद और गट हाजी की ऑडियो लीक सामने आ गई। खारजी नूर वली गट हाजी पर पाकिस्तान से दहशतगर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। नूर वली महसूद ने गट हाजी को बताया, इतला कर दो, हमारी तरफ वापसी की किसी को इजाजत नहीं, हर कोई खुद को तैयार रखे, रास्ता बदलने की इजाजत नहीं। लीक ऑडियो वाज़ेह सबूत है फितनाल खवारिज के सरगना अफगानिस्तान में छुपे बैठे हैं और वहीं से दहशतगर्दों को हिदायत जारी करते हैं। वफाकी हुकूमत 2 साल के लिए अख्तियार दे, तामीरी काम करके दिखाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा तमाम शहरी मुल्क के सिपाही हैं, कलम और मोबाइल हमारे हथियार हैं। सोशल मीडिया पर हम अपने ही मुल्क पर तनकीद करते हैं, जिससे दुश्मन मुल्क हम पर हंस रहे होते हैं। वज़ीर आज़म मुल्क की तरक्की के लिए बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्की को रोकने की कोशिश ना करें। एलॉन मस्क जहरीले प्रोपेगेंडे से अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज हुआ। बरतानवी अखबार गार्डियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बायकॉट कर दिया। लिखा सोशल मीडिया के फवायद हैं मगर मनफी असरात कहीं ज्यादा हैं। एक्स पर नस्ल परस्ताना और साजिशी मवाद को प्रमोट किया जाता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात से वाज़ेह हो गया कि एलॉन मस्क ने एक्स के जरिए मखसूस सियासी बयानिए को हवा दी। सारिफीन पर हमारे आर्टिकल शेयर करने की कोई पाबंदी नहीं और हमारे रिपोर्टर्स भी खबरें जमा करने में आज़ाद होंगे, मगर गार्डियन ऑफिशियली एक्स प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करेगा। इसराइल की गजा और लबनान में वहशियाना बमबारी। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 64 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनस, नसीरात, दीर अल बला और बैतुल्लाहिया में बम बरसाए। शुमाली गजा में स्कूल को आग लगा दी। मुतादिद अफराद जख्मी। गजा में इसराइली महासरे के बायस एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। जनूबी बैरूत में रात भर बमबारी, तिबी मरकज को भी निशाना बनाया। लबनान में 24 घंटों के दौरान 28 अफराद लुकमा अजल बने। मोदी सरकार के बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। घरों को गैर कानूनी करार देकर मिसमार करने से रोकने का हुक्म। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा हुकूमत किसी का घर गिरा सकती है, ना ही जज बन सकती है। मुंसिफाना ट्रायल के बगैर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। किसी पर इल्जाम है तो पूरे खानदान से छत कैसे छीनी जा सकती है। किसी का घर 15 दिन का नोटिस दिए बगैर नहीं गिराया जा सकता। हुक्म के खिलाफ वर्जी की तो तौहीन अदालत समझा जाएगा। मोदी सरकार इंतहा पसंदी और गाय का गोश्त खाने का इल्जाम लगाकर मुसलमानों के सैकड़ों घर मिसमार कर चुकी है। आईसीसी की वनडे रैंकिंग पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का राज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार कारकर्दगी के बाद शाहीन शाह आफरीदी पहले नंबर पर आ गए। हारिस रऊफ 14 दर्जे तरक्की करके 13वें नंबर पर पहुंच गए। बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरे हंगरी, बुडापेस्ट प्रोसेस की 7वीं वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। खिताब में कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान ने मुतादिद कानूनी इकदाम किए हैं।
अक़वाम आलम को तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजों ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी है। इन मुश्किलात से कोई मुल्क अकेले नहीं निपट सकता। जामे बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली की ज़रूरत है। बाबर आजम ने उस्मान ख्वाजा को उनकी फाउंडेशन के लिए अपनी जर्सी तोहफे में दे दी। उस्मान ख्वाजा ब्रिस्बेन स्टेडियम में अतियात जमा कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने बाबर आजम का शुक्रिया अदा किया। कहा, बाबर पाकिस्तान के अजीम क्रिकेटर है। बाबर आजम बोले, उस्मान भाई से राब्ते में रहता हूँ, इनकी मदद करने का वादा किया था।